Hello students, today we'll start the next chapter, acid, base and salt. And the very first, the concept of acid and bases. There are total three concepts of acid and bases. One is Arrhenius concept, second Bronsted-Lowry concept, and third is Lewis concept. Okay students, total three concepts for the defining acids and bases, but in the class 10th we'll study about Arrhenius concept only. So let us start Arrhenius concept of acid and base. According to Arrhenius concept, acids are the substances which gives H plus ion in aqueous solution. H plus ions in aqueous solution. Okay students, ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ Arrhenius concept, Arrhenius is the name of scientist. What is meant by aqueous solution? Aqueous solution means solution prepared in water. Water means aqua. Water को aqua बोलते हैं, जैसे नाम सुना होगा aqua fina, aqua guard. So here, what is the meaning of aqua? Aqua means water. So the solution prepared in water is known as aqueous solution. So the substance which give H plus ion or proton, then they known as acid. H plus ion also be known as proton. यहाँ पे मैंने H plus की जगह पे proton word भी यूज किया. तो H plus का नाम proton भी क्यों होता है? Because in the protium isotope of hydrogen, we know hydrogen mainly hydrogen का कौन सा isotope होता है नेचर में? प्रोटियम. और उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन में क्या क्या प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. प्रोटियम में न्यूट्रॉन होता नहीं है, न्यूट्रॉन 0 और प्रोटॉन कितना होता है 1. हाइड्रोजन के प्रोटियम सब्सटेंस में मतलब आइसोटोप में न्यूट्रॉन होता नहीं है, न्यूट्रॉन 0 और प्रोटॉन कितना होता है 1. ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय H plus? H plus means hydrogen without electron. So if one electron removed from the hydrogen then converts into H plus ion or not? Definitely it converts into H plus ion. तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद में यहाँ पे क्या बचा? इसमें क्या न्यूट्रॉन है इसके पास? नो. तो प्रोटॉन है. यस. तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पास में हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन ही बचता है, तो H प्लस को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन. ओके स्टूडेंट्स, सो एसिड्स आर द सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. तो आइए देखते हैं कौन देगा H प्लस आयन. सबसे सिंपल सी थ्योरी है, H प्लस आयन वो देगा जिसके पास में हाइड्रोजन होगी. ओके, सिंपल सी बात है. कौन देगा H प्लस आयन? जिसके पास में हाइड्रोजन होनी चाहिए वो H प्लस देगा. तो ऐसे एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl if dissolved in water then what happen? Then it dissociate into H plus and Cl minus. यहाँ पे एरो रिवर्सिबल लगाया जा रहा है. इसका रीजन क्या है? एरो यहाँ पे रिवर्सिबल क्यों है? Why? Because H plus and Cl minus means ion formed under reaction. They can combine again and give the formation of a neutral molecule. कुछ आयन फिर से भी कंबाइन हो सकते हैं, तो एरो यहाँ पे रिवर्सिबल का लगेगा. So HCl gives H plus ion and convert into Cl minus. Okay? H प्लस दिया तो Cl पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस. तो यहाँ HCl एसिड है कि नहीं आरएनएस के अकॉर्डिंग? यस. क्यों? क्योंकि ये H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहा है. कहाँ पे कर रहा है? वाटर के अंदर H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट, H2SO4. H2SO4 is known as sulfuric acid. Sulfuric acid gives 2H plus, then SO4 has 2 minus charge. After removing 2H plus ion, it converts into SO4 2 minus. तो H plus निकलने के बाद में SO4 पे चार्ज कितना आ गया? माइनस का 2. तो याद रखना है 2 H plus निकलेंगे तो जो बची हुई स्पीसीज है उसके ऊपर माइनस का भी 2 चार्ज आ जाएगा. 3 निकलेंगे तो -3 आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरिक एसिड, द फॉर्मूला इज H3PO4. If H3PO4 also dissolved in water,
then what happen? It able to give or lose 3 H plus ions. So after losing 3 H plus ion, the species is PO4 and having 3 minus charge. So these are the examples of a acid, and the ions formed are known as chloride. Cl minus is known as chloride, SO4 2 minus is known as sulfate, and PO4 3 minus known as phosphate. ऐसे यदि कार्बोनिक एसिड हो H2CO3 और ये भी H plus ion दे दे, then what happen? 2 H plus ion released and charge will be 2 minus on CO3, 2 minus CO3, then it is known as carbonate ion. We know the formula of nitric acid, HNO3. HNO3, if it dissolved in water, then it give H plus ion, converts into NO3 minus, then it is known as nitrate ion. And if HNO2, it is known as nitrous acid. Nitrous acid. HNO2 is known as nitrous acid, gives H plus ion, then it form NO2 minus, it is nitrite ion. Nitrite ion, nitrate ion, carbonate, phosphate, sulfate, chloride. तो ऐसे मोलिक्यूल जो H प्लस आयन लूज कर देते हैं कहां पर? वाटर के अंदर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एसिड. किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ आरएनएस कॉन्सेप्ट. याद रखेंगे. अब ये H प्लस आयन जा कहां रहे हैं? कौन ले रहा है इनको? तो इस आरएनएस का सेकंड पॉइंट भी है. क्या है इस आरएनएस का सेकंड पॉइंट? आइए हम चेक करते हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ आरएनएस कॉन्सेप्ट इज acids are the substances which give H plus ion or proton in aqueous solution. Then what is the second point? Second point is the H plus ion provided by acid react with the water and give out the formation of hydronium ion, which is known as hydronium ion H3O plus ion. This is the second step. H plus given by acid react with the water molecule, give out the formation of a hydronium ion H3O plus ion. Okay students, तो दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, दो पॉइंट आपको याद रखने हैं एसिड के लिए. आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और जो H प्लस आयन है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन. आइए चेक करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन, कि किस तरह से हाइड्रोनियम आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है. सो विल सी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन. तो क्या होगी मैकेनिज्म? आइए देखते हैं. H प्लस किसने दिया? एसिड ने. रिएक्ट विद वाटर मोलिक्यूल. दिस इज वाटर और नॉट? यस, दिस इज वाटर मोलिक्यूल, H2O मोलिक्यूल. सो व्हाट हैपन? क्या होगा यहाँ पे? दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो क्या H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं. एक था बेचारे के पास, वो भी चला गया यहाँ से, तभी तो H प्लस की फॉर्म में है. एटॉमिक नंबर इसका एक ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है. नाउ इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ H प्लस आयन. तो हाइड्रोजन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फकीर है, फकीर बिना इलेक्ट्रॉन का, और फिर भी चला आया यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन से. अब इसके पास में, ऑक्सीजन के पास में, हमें पता है क्या होता है. 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े होते हैं ना. काम में 2 ले लेगा ये, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं है, ये पता है कि नहीं पता है? आइए चेक करते हैं थोड़ा सा इसको डीपली. ऑपरेट करते हैं इस H2O को, ऑपरेशन कर देते हैं आज इसका. वाटर मोलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, एंड वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट ऑफ ऑक्सीजन दैट 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन. 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहां पे? वैलेंस शेल में. और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर वाले करेंगे, अंदर वाले नहीं करेंगे. 6 electrons are present in the valence shell of oxygen because the configuration is 2-6, and we can see here there are 6 electrons in the outermost shell. Okay, outermost shell also be known as valence shell. So in the valency or the bond formation, these 6 electrons participated, and what happened?
अब दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो ऑक्सीजन ने भी शेयरिंग करी, ऑक्सीजन ने भी शेयरिंग करी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में और एक इसके साथ में, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, राइट और नॉट? बताओ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4, 5, 6, कितने बचे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया? 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने खर्च कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन का हम बना देते हैं पेयर। तो पेयर की फॉर्म में कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं? 2। दीज पेयर्स आर नोन एज लोन पेयर। ओके स्टूडेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और जिन्होंने बॉन्ड बना लिया उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। रिमेंबर इट, the electron which participate in the formation of bond known as bond pair, and the electrons which does not participate in the bond formation known as lone pair। जिस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो लोन पेयर का हिस्सा होगा, जिसने कर लिया वो बॉन्ड पेयर का हिस्सा होगा। तो अब आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन के पास में यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, यस, कितने पड़े होते हैं? 4 पड़े होते हैं। अभी हम यहाँ पे 2 ही काम में ले रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हम काम में लेंगे तो इसमें कैसी हो जाएगी? यहाँ पे बॉन्डिंग आइए देखते हैं। ऑक्सीजन के पास में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 लोन पेयर हैं, लोन पेयर। एक लोन पेयर हमने यहाँ पे इसका लिख लिया। हाइड्रोजन के पास में बॉन्ड मारने के लिए इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दया करेगा और दया करके हाइड्रोजन के हिस्से का भी खुद ही इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा और खुद के हिस्से का भी खुद ही इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा। तो लोन पेयर यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन भी और हाइड्रोजन के हिस्से का इलेक्ट्रॉन भी लगा करके बॉन्ड बना देता है। और बॉन्ड बना देगा तो फिर आइए देखते हैं क्या होगी अगली कंडीशन। OH H एंड थर्ड H, ओके, OH H एंड थर्ड, 3 H हो गए, पहले 2 ही थे। अब देखिए ऑक्सीजन ने अपना लोन पर खर्च किया तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कम हुए कि बढ़ गए? डेफिनेटली कम हो गए, डिक्रीज हो गए। तो अब ऑक्सीजन को पता लगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं आया? पहले तो इसने दे दिए जोश जोश में इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। नाउ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इज वेनिस्ड। खत्म हो गया हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसको आते हुए दिखे, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हो गया फिनिश, खत्म हो गया, वेनिस हो गया, और हाइड्रोजन हो गया राजी, बॉन्ड बन गया, इसका कोई पॉजिटिव नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन के तो कम हुए ना, तो यहाँ पे चार्ज किस पे आया? ऑक्सीजन पे। और इसी को आप साफ साफ देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? H3O+ आयन, H1 H2 एंड H3O+ आयन, और इसी का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोनियम आयन। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना है ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। उनमें से एक लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाने में काम आता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, जो कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ पे H+ के साथ में बॉन्डिंग करी। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था आर्यनस का? H+ ion given by acid react with the water molecule and give the formation of H3O+ ion. Okay students, now we see the ionization steps of acids. आयोनाइजेशन स्टेप का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। आयोनाइजेशन स्टेप्स, here H2SO4 having the capacity to release 2 H+ ion, 2 H+ रिलीज कर सकता है ये। तो H2SO4 एक साथ 2 H+ रिलीज नहीं करता है। ये जिसमें H3PO3 है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ रिलीज नहीं होंगे, 1 by 1 होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है ये काम। तो H2SO4 को ऐसे नहीं पानी में डालते ही, जैसे मान लो 50 मॉलिक्यूल हमने डाले तो सबके सामने एक साथ अटेंशन सारे H+ निकाल दी, नो, यहाँ पे स्टेप वाइज काम होगा। क्या होगा स्टेप वाइज? आइए आयनाइजेशन स्टेप लिखना सीखते हैं इसकी। H2SO4 converts into H+ and HSO4- in the very first step। सबसे पहली स्टेप में क्या होगा? H2SO4 ने एक H+ लूज किया तो यहाँ पे एक H बचा, यस, SO4 पूरी स्पेसिफिक चार्ज कितना हुआ? जब एक H+ निकला तो माइनस का 1 चार्ज, सिंपल। अगली स्टेप में HSO4- दोबारा से क्या करेगा?
H प्लस लूज करेगा, एक ही था और वही चला गया, -1 पहले से ही था, एक माइनस और आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया बोलो, -2, -1 था, एक H और निकलने से -1 और आ गया, SO4 -2 यहाँ पे हो गया। नाउ अब इन दोनों स्टेप को हम कंबाइन कर देंगे, ये इसकी सेकंड स्टेप है, ऐड कर देंगे। ऐड करने का रूल ये होता है केमिस्ट्री में, जो भी दो रिएक्शन या स्टेप को, कि लेफ्ट राइट में जो कॉमन आ रहा है उसको हम कर देंगे कैंसिल, तो लेफ्ट HSO4- और HSO4- ये हो गए कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो लिखो इसको, क्या हुआ, लेफ्ट साइड में क्या बचा, H2SO4 कन्वर्ट इनटू 2H प्लस SO4 2-, यहाँ पे बच गया H2SO4 कन्वर्ट्स इनटू 2H प्लस SO4 2-, ये सिंगल स्टेप में हमने यहाँ पे लिखा था। और यदि इसके आयनाइजेशन स्टेप पूछी जाए तो हम इसके आयनाइजेशन स्टेप भी लिख सकते हैं, लेकिन किसकी होगी स्टेप, जिसमें H+ आए एक से ज्यादा अवेलेबल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा आर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आर्गेनिक कॉन्सेप्ट for bases. Thank you so much.